नानक की बारी हो तुझ नहीं जाए। सो करे जित से रजा, सो करे जित से रजा। श्री हरि कृष्ण ते आई है, श्री हरि कृष्ण ते आई है, श्री हरि कृष्ण ते आई है, श्री हरि कृष्ण ते आई है। इस डिठे सब दुख जाए, 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 जिस डिठे सब दुख जाए, इस डिठे सब दुख जाए, इस डिठे सब दुख जाए, इस डिठे सब दुख जाए। एक बहादुर सिंह मरे, एक बहादुर सिंह मरे, एक बहादुर सिंह मरे, एक बहादुर सिंह मरे। तार नाम नित गावे तार, सब पाई होए सहाय। तार नाम नित गावे तार, सब पाई होए सहाय। श्री हरि कृष्ण ते आई है, श्री हरि कृष्ण ते आई है, श्री हरि कृष्ण ते आई है, श्री हरि कृष्ण ते आई है। इतनी सेवा प्रवान करते हुए सारे फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर की जिसनो मत आवे, सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। सलोक महल्ला चौथा। हर हर नाम अमृत है, हर जपिए सतगुर पाए।
जन नानक ते मुख उजले, जिन हर सुनिया मन पाए। महला चौथा। हर हर नाम निदान है, गुरमुख पाया जाए। जिन तुर मस्तक लिखिया, तिन सतगुर मिलिया। तन मन शीतल होया, शांत वसी मन आए। नानक हर हर चांदिया, सब दालद दुख ले जाए। पौड़ी हाँ वारे तिन का सदा सदा, जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा देखिया। तिन का मिलिया मेरा सतगुरु, जिनका तुर मस्तक लेखिया। हर अगम त्याया गुरमति, तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया। गुर बचन त्याया जिन्ना अगम हर, ते ठाकुर सेवक कर रल एकिया। सब कहो मुखों नर नर हरे, नर नर हरे, नर नर हरे। हर लाहा हर भगत वशेखिया। सब कहो मुखों नर नर हरे, नर नर हरे, नर नर हरे। हर लाहा हर भगत वशेखिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कानड़े की वार दी 9वीं पौड़ी ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ 1316 ਅੰਗ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ एक समाजिक त्योहार है रखड़ी। मैं हमेशा बेनती करदा, रखड़ी दा लोहड़ी दा सिख धर्म नाल कोई संबंध नहीं है। ये समाजिक त्योहार ने भैणां भरावां दे ਜਾਂ जिन्हां दे घर विच बच्चे जमदे ने ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਹੜੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖੜੀ
ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਰਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਜੋ 4ਥੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਾਅ, ਉਮਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਿਚਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਸੋਈ ਕਿਚਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਬੰਗਲਾ ਵੱਖਰਾ, ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰਾ। ਜਦੋਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਨਾਹੂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨ, ਜਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਿਮਾਮਈ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ, ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ, ਮਾਣਯੋਗ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ।
आप जी मानयोग सिंह साहब होना ने बड़े ही गरीब शब्दां अंदर ढुकवें शब्दां अंदर ये याद कराया जो अज का ये समाजिक त्यौहार है। उन्होंने आप जी ने रिक्वेस्ट की कि ये नाल सिख परंपरावां दा सिख इतिहास का कोई तलोकात नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ना सिद्धांतक पक्ष तो ना ही कोई साडे कोलों इतिहासक ऐसा स्रोत ही है जो ये दसदा होए भी ये त्यौहार सिखां दा। जिवें ज्ञानी जी ने एक दुखांत भी शब्दों में आप जी के सामने रखा कि हर त्यौहार चाहे वह किसी का भी होवे उसनूं मुबारक है, पर उसनूं गुरुद्वारे लियाउणा ये गुरमत नहीं है, ये गुरु सोच नहीं है, ये गुरु प्यार नहीं है। जिन्हां दा त्यौहार है उन्होंने मुबारक है, जिन्हां दा जो भी त्यौहार है उन्होंने वो मुबारक है, पर उसनूं धरू के या किसी तरीके दे नाल भी मन में उस त्यौहार के प्रति फेथ रख के शरधा रख के उसनूं घरां तो कढ़ के गुरुद्वारे तक लैके आउणा ये किसी पक्ष तो भी वाजिब नहीं है। और मेरी ये सोच है कि जिहड़े रोज गुरु चरणों नाल जुड़े हुए गुरु प्यारे ने, गुरबाणी की कथा सरवण करने वाले, गुरबाणी दे सहज पाठ नाल जुड़े हुए जां जिहड़े गुरु इतिहास तो वाकफ ने, वो तो इस कर्म नूं कभी भी निजी तौर पर भी नहीं करनगे, ते कम से कम वो इन्ने अलर्ट होणगे कि ये जिहड़े त्यौहार ने इन्हां नूं वो खिंच के गुरुद्वारे लैके नहीं आउणगे। गुरु कृपा करे असीं गुरमत रोशनी अंदर, गुरमत ज्ञान अंदर, गुरु जुगती दे नाल केवल साडा रखे कि परमात्मा, तो इतिहास इस गल का गवाह है कि जिहड़ा परमात्मा है उसका रूप दसिया है गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने खालसा जी ने। असी बचन पढ़ते हैं, खालसा अकाल पुरख की फौज। परमात्मा सब की रक्षा करता है, हर पक्ष तो करता है, हर जगह से करता है, हर मुकाम से करता है, बैरूनी तौर पर भी, अंदरूनी तौर पर भी, मैकी तौर पर भी। इस शब्द अंदर एक शब्द होना है, दुख दिल दर सब लह जाए, दिल दर दर्द में गरीबी, जो बैरूनी है, एक अंदरूनी है। हर पक्ष तो परमात्मा जी साड़ी बहौड़ी करते हैं, क्योंकि सब असी उहदे धीआं पुत्तर हैं, वो साडा भरा भी है। खालसा परमात्मा का खास रूप है, इसे भी खालसे ने जब भी दुनिया की किसी भी बहु बेटी की, खास तौर पर हिंदुस्तान दियां बहुआ बेटियां की रक्षा की, तो ये गल प्रमाणित है, मनी हुई है कि जिन्होंने खालसा अबदाली वर्गिया को बचा के लिया रहा, गजनी के बाजार विचों विकल चों बचाता रहा, उन्होंने एक भी किसी भैन ने खालसा जी को रखड़ी नहीं सी बननी, तो जे बनन आउंदी भी तो खालसा ना बनाता, क्योंकि गुरमत ने सानू ये गल दृढ़ कराई है। जब असी भाई गुरदास साहब जी के श्री मुख तो उचारे हुए बचन पढ़ते हैं कि देख पराइयां चंगियां मावां धीआं भैणां जाने, उत्थे केवल अपनी नूं नहीं कहा, सारियां नूं कहा। इसलिए खालसा
परमात्मा की दिती हुई जो जुगत गुरु ग्रंथ साहब के अंदर है, उस दे मुताबिक जींदिया होया उस जीवन जुगत नूं फॉलो करके जींदिया होया हर एक दी जिहड़ी रखिया है उसका वचन बनता है। कोरोना वायरस चलिया, इस स्थान तो सिंह साहब होना दी दे विच बड़ी वड्डी सेवा है, संगतां ने बहुत सेवा की। जब बैरूनी तौर पर कोरोने ने कहर वरताया, दुनिया के किसी मंदिर विचों भी किसी स्थान विचों भी जो सेवा गुरुद्वारा बंगला साहब तो, गुरुद्वारा सीसगंज साहब तो, गुरुद्वारा नानक प्याऊ रकाबगंज साहब, जो इत्थे दे हिस्टोरीकल प्लेस ने, जो सेवावां मानवता नूं बचाउण लई इन्हां स्थानां तो होईयां और जिहड़ी महिमा इन्हां स्थानां तो वंडे गए लंगर दी समुचे जगत विच आई, किसी होर एक स्थान का भी नाम दस सकते हो। सिख स्थानों तो देना, चाहे वह श्रोमणी कमेटी होए, चाहे वह दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, और जिन्होंने लंगर पहुँचा के, क्योंकि अन्न जिहड़ा है ये प्राण बचते हैं। गुरु ग्रंथ साहब की पावन बाणी के बचन ने, जपिया नाम अन्न कै स्वाद, अन्ने बिना न होए सकाल। कह लगे अन्न के नाल प्राण बचते हैं, तो जिन्होंने अन्न दे के, और हैरानी की गल है, कई की आलोचना भी की, मैं हैरान होना। मैं शायद पिछली बार भी बेनती की सी कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिंह साहब जी की जो लंबी सोच है वो निकली हुई जी एक परोपकारी मानवता के भले की एक पवित्र एक सराहनीय सोच सी, वो ये सी कि लंगर जिहड़ा है वो लोड़वंदां दे घर तक पहुँचाया जाए। अज तो पहला या कोरोना तो पहला कोई एक भी हाथ खड़ा करके दस सकता है भी गुरुद्वारे साहबानों च लंगर घर पहुँचता रहा। हुण लोड़ सी ताकि गुरुद्वारे बैठा के पंगत में लंगर छकाया नहीं सी जा सकता, ताकि कोई पेट तो भुखा ना रहे। असल में रखड़ी ये है, ये किसी की रक्षा करना है, किसी दे प्राणों को बचाना, किसी को भुख तो बचाना, किसी को इज्जत देना, किसी को मान देना। असी केवल ते केवल एक निके जे धागे ते इनू समेट के रख दिता। परमात्मा सारियां दा, जेड़ा भी परमात्मा की शरण जाता है, जेड़ा भी गुरु की शरण जाता है, गुरु उसकी रक्षा करता है। तो जो गुरु के गुण ने, मैं इवें कहता, जो ईश्वरी गुण ने वो खालसा जी के गुण ने, तो जेड़े खालसा जी के गुण ने गुरु के गुण ने, ईश्वरी गुण गुरु को गुण ने, तो जेड़े गुरु के गुण ने वो खालसा जी कोल ने। इसलिए खालसा जी का सुभाव ईश्वरी सुभाव है, खालसा जी का सुभाव गुरु सुभाव है। या इवें भी कहा जा सकता है कि प्रभु सुभाव दी, प्रभु गुणा दी वाहिगुरु जी परोपकारी ने, ज्ञान दे दाते ने, भुलिया मार्ग ते पाण वाले ने। यदि व्याख्या गुरु ने प्रैक्टिकल तौर पर आके धरती ते की ना, किन्नियां नूं गुरु जी ने सही मार्ग ते तोड़िया। जिसनूं गुरबाणी अंदर इवें आख्या गया, भूले सिख गुरु समझाए, उजड़ जाते मार्ग पाए, भूले को कर मार्ग दिखाया, अवर त्याग हर भगति लाया। ईश्वरी गुणा की व्याख्या गुरु प्रैक्टिकल तौर पर धरती ते आके करता है, क्योंकि गुरु ईश्वर का रूप है तो ईश्वर नूं सरेंडर है, परमात्मा जी नूं, वाहिगुरु जी नूं सरेंडर है।
इसलिए कुदरती तौर पर गुरु के अंदरों ईश्वरी गुणों की व्याख्या होती है। तो सच करके जानियो, जिहड़ा सिख गुरु नूं समर्पित है ना, वो भी नैचुरली तौर पर उहदे अंदरों गुरु के गुणों की व्याख्या मानवता का भला करदिया होंदी है, चंगा सोचदिया होंदी है, किसी नूं चंगे राह ते तोरदिया होंदी है, किसी डिगदे नूं सहारा दे के होंदी है। गुरु कृपा करे असीं इन्हां त्योहारां नूं उन्हां नूं मुबारक है। जिवें अपना गुरु अपना ही हुंदा है, अपना प्यो अपना ही हुंदा है, अपने प्यो वर्गा अपनी मां वर्गा प्यार किते होर नहीं मिल सकता। अपनी गुरु की फिलोसफी साडी अपनी है, उहदा वर्गा निग, उहदे वर्गी दयालता, उहदे वर्गा स्नेह सानू होर किते नहीं मिल सकता। इसलिए उन्हां नूं मुबारक है जिन्हां ने इहदी होंद बनाई, इनू सिरजिया, इहदा इतिहास बनाया। पर असी कम से कम इन्हां समाजिक त्योहारां नूं गुरुद्वारे तक रखड़ियां ना लेके आइए। और ये गुरु सिद्धांत का विरोध तो है ही आ, थोड़ा अपने अंदर भी झाक के देखिए कि ये गुरमत है। पावन शब्द जिदा मूल पाठ सिंह साहब जी ने आप जी ने सुनाया। गुरु रामदास महाराज जी के शब्द हैं, श्लोक महला चौथा, हर हर नाम अमृत है। गुरबाणी अंदर अमृत शब्द बड़ी जगह ते आया और कई अर्थों में आया, पर बहुतात जिहड़ा अमृत शब्द है वो नाम अमृत के संबंध में आया, बाणी अमृत के संबंध में आया। कहने लगे जिहड़ा नाम अमृत है, गुरु रामदास महाराज ने ही बिहागड़ा राज में स्पष्ट किया है, हर हर नाम अमृत है, अमृत गुरमत पाए राम, हरि का नाम अमृत है। और ये अमृत नाम मिलता कित्थों आ? कह लगे गुरु दे कोल, गुरु नूं समर्पित होया। वह एक निज़म है, जिवें सिंह साहब ने कहा भी हर ऐतवार अमृत छकाया जाता है। अमृत छकना की है? गुरु नूं समर्पित होना। ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये कोई बाहरी क्रिया नहीं है, ये जीवन का बदलाव है। जे जीवन में बदलाव नहीं आया, चाहे मैं हाँ चाहे कोई भी आ, तो क्षमा करियो अमृत एक क्रिया रह जाएगी, अमृत जीवन बदलने का कारण नहीं बनेगा। अमृत जीवन तब्दील करता है। अगर जिहो जिहा जी रहे हैं, अमृत छक के भी इहो जिहा जीवन जीना है, तो फिर अमृत छकण का अर्थ की होया, मीनिंग की होया? मैं तो कई बार बेनती करदा कि जब असी अमृतपान करन जाने ना, तो साडी शब्दावली होती है कि असी अमृत छकने जा रहे हैं, अमृतपान करन जा रहे हैं, यही आखते हैं ना। कभी ये कहने क्या भी अमृत के छट्टे मराउण जा रहे हैं, अमृत अखां च पवाउण जा रहे हैं, अमृत सिर च पवाउण जा रहे हैं। पर अमृत का अटुट हिस्सा है जिहड़ा कभी भी छड्डिया नहीं जा सकता। अमृत के छट्टे अखां विच मारने, अमृत नूं सीस विच पाउणा। क्षमा करियो, जे साडा बोलना अमृत नहीं होया, सोचना अमृत नहीं होया, साडे हत्थां दा वर्क अमृत वर्गा नहीं होया, साडे चलण पैरां दा चलना अमृत दे मुताबिक नहीं होया, फिर असी अमृत छकिया है। अमृत गुण संत बोलते, अमृत गुण संत बोलते, ये गल याद रखियो। जिहड़ा अमृत बैरूनी तौर पर छकाया जाता है, उहदे विच वस्तुआं सारियां बैरूनी हुंदियां ने। पानी बाहरों लिया जाता है, बाटा बाहरों लिया जाता है, खंडा बाहरों लिया जाता है,
पतासे भी बाहरों ले जाते हैं, सब बाहरों ही है ना, सब कुछ मौजूद है ना एक दुकान ते। पर जिहड़ा अमृत तैयार करदिया कलाम पढ़िया जाता है वह बैरूनी नहीं हुंदा, वो बाहरों लिया गया है, वो किसी दुकान तो लिया गया, वो किसी को खरीदिया गया, वो अंदरूनी है, वो रूहानी है। और जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की पावन बाणी ने आख्या अमृत संत, अमृत गुण ने संत बोलते हैं। जब भी संत बोलेगा अमृत गुण बोलेगा। संत दे महापुरुष दे बोलों में अमृत होएगा। ते कह लगे जिथे अमृत पीना है घुटने टेक के मंग के, उथे जो संत जन अमृत गुण बोलते ने उन्होंने उस मन नू पिला। मन अमृत पीएगा गुणा दा। शरीर ने रसना ने अमृत पीता पंजा प्यारियां दा, ते जिहड़ी पंजा प्यारियां दी सिੱਖਿਆ दीखिया है उन्होंने उस सिੱਖਿਆ दीखिया रूपी अमृत नू मन पी ले, जिन्हों अज साहब आखदे ने हर हर नाम अमृत है, प्रभु का नाम प्रभु दे गुण अमृत ने। हर जपिए सतगुरु भाए, कह लगे सतगुरु दे अनुसार रह के, ये बड़ा औखा है। मैं अज भाई गुरदास साहब जी का एक बचन पढ़ रहा सी, जिहड़ी तवज्जो बख्शियो। कह लगे गुरु ते सिख नूं अथाह प्यार करदा है, अथाह प्यार करदा है। मैं ये भी गल कह दिया कि जद तैनू कोई ना प्यार करे, तेरा कोई ना होए, सब तैनू पिठ दे जान, सब तेरा साथ छड़ जान, प्यार एक गल याद रखी, अगर गुरु कोल उदों भी आ जाएगा तो गुरु तेनू प्यार करेगा। तेरी औगणा नू देख के, तेरी गरीबी नू देख के, तेरी किहो जी अवस्था पी होए, जिन्हों देख के लोग तेरे तो मुंह मोड़ लैन, अगर उस वक्त भी तू गुरु दे कोल आएगा तो गुरु फिर भी तेनू स्नेह करेगा। मैं भाई गुरदास साहब का एक बचन पढ़िया, जैसे मात पिता प्रतिपालत अनेक सुत, एक मां एक प्यो कईयां धियां पुत्रां नूं पाल दिंदे ने, कईयां पुत्रां नूं पाल दिंदे ने। पर हैरानी की गल है कि कईयां पुत्रां दे माँ बाप मैं रुलदे देखे ने, रुलदे देखे ने। एक मां ने एक प्यो ने कई पुत पाल दिते, पर अज तुसी देखो यदि स्टेज तो व्याख्या करने की लोड़ नहीं है, साडा जीवन समाज व्याख्या कर रहा है, बड़े हुए बिरध आश्रम इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि एक मां बाप ने कईयां धियां पुत्रां नूं पाल दिता, पर कईयां पुत्रां दे एक मां बाप जिन्हां दे खर्चे बच्चियां जिन्ने नहीं हुंदे हुंदे ने, रुलदे देखे गए ने। कारण की है कि जमाना इन्ना जल्दी चेंज होया कि अज का बच्चा, मैं शायद एक और पहला भी बेनती की सी, मैं दोहरा रहा हूँ तो मैनू खिमा करो, रेपीटेशन वक्ते का दोष नहीं होना चाहिए। अज का बच्चा माँ बाप को हक मंगदा है, हक, पर जो मां बाप के प्रति फर्ज है वह नहीं पहचानता, और तुहानू थोड़ा स्ट्रांग होना पएगा, दिल ते पत्थर धरना पएगा। अगर जेड़ा बच्चा अपना फर्ज नहीं पहचानता जो मां बाप के प्रति उन्होंने हक मंगण का भी अधिकार नहीं है, तो जे असी उसनू हक दे रहे हैं तो असी एक बीमार समाज की सिरजना कर रहे हैं, जो आने वाले समय अंदर ये बीमारी एक वड्डा रूप अख्तियार कर जाएगी। भाई साहब आखदे जैसे मात पिता प्रतिपालत अनेक सुत, अनेक सुतन पेना तैसे होए आवी, जिन्ने प्यार नाल रीझ नाल मां बाप बच्चे नूं पालदे ने, इन्ने रीझ प्यार नाल कदी बच्चियां भी मां बाप का ख्याल रखिया। जैसे मात पिता
चित चाहत है सुतन को, जिन्ना मां पुत नूं चाहुंदी आ, प्यो पुत नूं चाहुंदा है। कदी पुत ने भी मां नूं चाहया, कदी पुत ने भी प्यो नूं चाहया। तो तुहाडा की ख्याल है कि ड्यूटी केवल एक बन्ने हुंदी आ? ड्यूटियां दोनों बन्ने ने। यह गल जुदा है कि मां बाप वड्डियां ड्यूटियां निभा के जाते हैं। गुरु भी सिख के प्रति वड्डियां ड्यूटियां निभा के जाता है, वड्डियां इन्नियां वड्डियां ड्यूटियां, इन्ने वड्डे कर्म कि अपना सब कुछ निशावर करके भी सिखां वाल इशारा करके कहता इन पुत्रन की सीस पैवार दिए सुतचार। इहो जिहा परोपकारी कोई गुरु होएगा? जैसे मात पिता चित चाहत है सुतन को, तैसे ना सुतन चित चाह उपजावी। भाई साहब आखदे मैं किसी पुत दे अंदर जेड़ी चाहत माता पिता दे मन अंदर पुत दे प्रति हुंदी, मैं किसी पुत दे मन अंदर मां बाप दे प्रति ये चाहत नहीं देखी। और सच करके जानियो, जिन्नी चाहत गुरु सिख दी करदा, सिख गुरु दी नहीं करता। जे गुरु अनुसार सिख चलदा तो अज ये गल कहनी ना पैंदी भी त्योहार गुरुद्वारे रह के ना आओ। गुरु साडा ख्याल रखता है, हर पल रखता है, साथ साथ संभालता है। तीसरी पंक्ति है भाई गुरदास साहब जी की, जैसे मात पिता सुत सुख दुख सोखानंद सोगानंद। कह लगे जिवें मां ते प्यो अपने पुत दे दुख विच दुखी हुंदे ने, सुख विच सुखी हुंदे ने। हुण बुखार बच्चे नूं चढ़िया, रोटी मां नहीं खा रही, बीमार बच्चा है, सौ मां नहीं रही। उन्होंने पूछो कि बीमार तो तेरा बच्चा है, तू रोटी क्यों नहीं खा रही? कह लगी किवें खावा, मेरे प्राण ने इहदे विच, मेरी ये जान है, मेरा दिलदार है, मेरा पुत्र है। हुण पुत बीमार है, मां रोटी नहीं खा रही, पुत बीमार है, पिता चिंता कर रहा है। ते कदी किते मां बीमार होए, कदी किते प्यो बीमार होए, कदी पुत ने रोटी छड्डी। मैं तो ऐसा भी देखा, तुम सोशल मीडिया अंदर देखते हो कि अक्सर बहुतात लोग बीमार मां बाप नूं घरां चों कढ दिंदे ने, मंगण ते मजबूर हो जाते हैं। जिन्ना मां बाप पुत दे दुख विच दुखी हुंदे ने, कदी पुत भी मां बाप दे दुख विच दुखी होया। मैं फिर शब्द रिपीट कर दिया, दोहरा दिया कि सारियां ड्यूटियां केवल मां बाप दियां ने। कि पुत दुखी होए तो मां दुखी है, पुत दुखी होए तो प्यो दुखी होए। अगर प्यो दुखी होए तो पुत क्यों ना दुखी होए? हालांकि पुत नूं ज्यादा होना चाहिए। जैसे मात पिता सुत सुख दुख सुखानंद, दुख सुख मेहनत ऐसे सुत ठहरावी। कह लगे पुत दुख सुख विच नहीं जे ठहरदा, नहीं जे ठहरदा। जिन्ना मां बाप पुत दे दुख विच दुखी हुंदे आ, पुत साथ छड्ड ही जांदे ने। एक मैं होर बेनती कर जावां, परिवार नूं पालो, ड्यूटी है, ये साडा फर्ज है, पूरा ख्याल रखो। पर जिन्हां ने कल नूं पुछना नहीं ना, वक्त बड़ा बदल रहा है, अजे होर बदलेगा। कम से कम उन्हां धीआं पुत्रां नूं पालण दे लई किसी दी रोटी खो के अपने बच्चों के मूँह विच ना पा। अंत पता की होएगा, अंत की होएगा? गुरु ग्रंथ साहब जी नूं पुछो ते साहब आखदे अंत पता की होना? बहु परपंच कर परतन लियावै, सुत दारा पै
बंदा परपंच करके, छल करके, कपट करके, धोखा करके कह लगे बंदा दौलत इकट्ठी करता है ते लिया के दिंदा किनू आ? सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब ने दोआं का नाम लिया। बंदा छल करेगा, कपट करेगा, धोखा करेगा ते लिया के भरा नूं देगा, भैन नूं देगा? कदी भी नहीं। लिया के देगा जनानी नूं ते पुत नूं। ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज पता की आखदे ने, सुध दारा पै आन लटावे। फिर एक पूरी व्याख्या करदे होया जिंदगी दे अंतले पलां दे आके समझाउंदे ने, छिन छिन तन सीजै जरा जनावै। कहने लगे छिन छिन करके तेरा जिहड़ा शरीर है ये बुढ़ेपे वल वध जाना है, इन्हें बजुर्ग हो जाना, ये विचों बल ताकत खत्म हो जानी आ। ते जद तू चार पाई ते लेट जाना ना, जिन्ना पुत्रां दे लई जिस जनानी दे लई धोखा करदा रहा ना, उन्होंने तेरे बुक विच भी पानी नहीं पाउना। बुक विच भी गिलास की गल छड्ड, बर्तन की गल छड्ड, तब तेरी ओक कोई पानी ना पावे। ते भाई गुरदास साहब आखदे ने, कह लगे जिवें मां बाप बच्चे का ख्याल रखते हैं, जिवें मां बाप बच्चे के दुख विच दुखी हुंदे ने, जिवें मां बाप बच्चियां नूं पालदे ने, आखिरी पंक्ति विच आखदे ने, तैसे गुरु मन बच कर्म सिखन लड़ाए गुर। तैसे मन बच कर्म सिखन लड़ाए गुर। गुरु मन करके, बचना करके, कर्मा करके, भाव संपूर्ण रूप दे विच गुरु अपने सिखां नूं लाड लांदा है, लाड प्यार करदा है, गले नाल लांदा है। कह लगे तैसे गुर सिख गुर सेवा ना हितावी। कह लगे मैं कोई विरला सिख वेख्या जे जिस तरीके नाल गुरु सिख नूं प्यार करदा है, उस तरीके दा सिख गुरु नूं प्यार करदा होवे। मैं ये गल कह देवां तो कोई अतकथनी नहीं होएगी कि एक पाछड़ प्यार बन जाता है। गुरु प्यार करता, सिख नहीं करता। अगली उदाहरण उन्होंने एक होर दी, जैसे कश्यप धर ध्यान सावधान करे। कछू कमी ना बच्चों को जन्म दे के पानी में वड़ जाती है। जिन्ना कछू कमी अपने बच्चों का ध्यान रखती है, कदी कछू कमी दे बच्चों ने भी कछू कमी का ध्यान रखा। जैसे कश्यप धर ध्यान सावधान करे, तैसे मात पिता प्रीत सुत न लगावी। जैसे सिमरन कर कूंज पर पक करे। जड़ी कूंज है ना, कूंज अपने बच्चों तो सैकड़े कोहां ते दूर चले जाती है, पर ध्यान बच्चों में हुंदा है। जैसे कूंज कर, जैसे सिमरन कर कूंज पर पक करे, तैसा सिमरन सुत पहना बन आवी। कहने लगे कदी कूंज दे बच्चों ने भी कूंज नूं इन्ना याद किया। जैसे गऊ बछड़ा को दुग्ध पियाए भुख है। तीसरी उदाहरण, जिमें गऊ अपने बछड़े नूं दुध पिया के पालदी है, पोषदी है, वड्डियां करदी है। कदी बछड़े ने भी अपनी गऊ मां नूं प्यार किया? कदी बछड़ा तरफदा देखिया? गुरु ग्रंथ साहब विच एक उदाहरण है बाबा नामदेव जी की। तरलोचन नूं कहंदे, तरलोचना मंदिर एक द्वार दा जाके गऊ चरावन छाड़ी अले। एक मंदिर सी, एक हवेली सी, वो जे 10 दरवाजे सी। उन्हां 10 दरवाजियां विचों गऊआं दा मालक अपनियां गऊआं नूं चारन दे वास्ते बाहर लै गया। वो 2 4 10 मील गऊआं नूं खेतां वाल लै गया। वो सैकड़े मील भी लै जाए ते गऊआं दा ध्यान अपने बछड़िਆਂ विच ही हुंदा है। जैसे गऊ बछड़ा को दुग्ध पियाए भुख है, तैसे ना बछड़ा गऊ प्रीत हित लावी। 3 उदाहरण दे के ना कछू कमी दी, गऊ दी
ते चौथी पंक्ति विच आखदे ने जैसे ज्ञान ध्यान सिमरन गुर सिख प्रत। कह लगे जिन्ना गुरु ज्ञान सिख नूं बख्शदा है, जिन्ना गुरु ध्यान सिख दा रखदा है, जिहड़ी दात सिमरन दी गुरु सिख नूं दे सकदा है, होर कितों मिल नहीं जे सकदे, नहीं जी मिल सकते। ते अज हजूर फरमांदे ने हर हर नाम अमृत है, हर जपीए सतगुरु पाए। गुरु नाल प्यार कर, गुरु दे अनुसार रह, परमात्मा दा नाम अमृत अपने आप ही जपिया जाएगा। तू एक बार वाहिगुरु कह के देख, तू एक बार जपजी साहिब जी का पाठ करके देख, बार बार मेरा गुरु कराएगा। तू एक कदम गुरु वाल पुट के देख, हजारां कदम पुटन की ताकत मेरा गुरु बख्शेगा। ऐसे बचन ने भाई गुरदास साहब दे समा नहीं हाँ, और गुरु की बाणी दे बचन ने समर्थ गुरु सिर हाथ धरियो, गुरकीनी कृपा हर नाम दियो, मेरे हीर है रतन नाम हर बसया, गुर हाथ धरियो मेरा माथा, जन्म जन्म के किल बिक दुख उतरे, गुर नाम दियो निर्राथा, मेरे मन भज राम नाम सब अर्था। फिर अगे दोहरांदे ने गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, गुर सतगुरु नाम दृढ़ाया, मन अंत न काहू डोले जियो। और गुरु की बाणी के बच्चे ने असी रोज पढ़ते हैं, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिना करो गुरु पास, हम कीरे किरम सतगुरु सरनाई, कर दया नाम प्रगास। हर जपिया सतगुरु पाए, हर हर नाम पवित्र है, हरि दा नाम बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही पवित्र है। एक गल याद रखियो, दो चीज तीन चीज़ों नूं कदी दाग नहीं लग सकता। रब जी नूं लग सकता दाग, नाम नूं दाग लग सकता, गुरु नूं दाग लग सकता। तो मैं ये भी बेनती कर दिया, दुनिया भर दे दाग लगे होण, तू गुरु दे कोल आ जा, नाम दी शरण चला जा, रब दी शरण चला जा, तेरे सारे दाग धो देगा। मस्कीन जी लॉजिक दिया करते सन कि सूरज दियां किरणां गंदी जगह ते पैंदियां ने, थल्ले दिशता पई है, चिकड़ पिया, सूरज दियां किरणां पैंदियां ना, पर कदी सूरज दियां किरणां गंदियां होईयां? कदी कहा भी सूरज दियां किरणां नूं धो दिओ, ये गंदी जगह ते पै रहीआं ने। तुसी रात की रोशनी अंदर लाइट अंदर बल्ब जगा के कोई बंदा अश्लील लिटरेचर पढ़े, रोशनी गंदी हुंदी है ना? सूरज दियां किरणां गंदी जगह ते पै के गंदियां नहीं हुंदियां, उल्ट गंदगी नूं सुका दिंदियां ने। तुसी देखो गंदगी पई होए, किचड़ आदक पिया होए, तो जिहड़ियां सूरज दियां किरणां खुद गंदियां नहीं होणगियां, उन्होंने सुका देणगियां, मिटा देणगे। रब सूरज की तरह उहदी रोशनी गंदियां ते पैंदी है, पर उन्हां दी गंदगी धो दिंदी है। हर हर नाम पवित्र है, हर जपत सुनत दुख जाए, हरि दे नाम नूं जप ते फिर सुन। याद रखियो, सुनन दी बड़ी महिमा, जपन दी बड़ी महिमा, ते अपना कुछ भी नहीं। जपना रब दी दिती हुई जुबान नाल, सुनना रब दे दिते हुए कन्ना नाल, बंदा फिर भी नहीं करता, खर्चा भी कोई नहीं। फिर मिलता की है? कह लगे दुख जाए, हरि दा नाम जपिया सुनिया दुख चले जाते ने। हर नाम तिनी आराध्या, हरि दा नाम प्यारिया उन्होंने सिमरिया, उन्होंने आराध्या। जिस मस्तक लिखिया तुर पाए, जिन्हां दे मस्तक विच परमात्मा ने तुर दरगाह तो नाम दा लेख लिख दिता। ये गल पक्की जे कि गुरमत मस्तक दे लेखा नूं मनदी है। सबना लिखिया वुड़ी कलाम, वगदी हुई कलम परमात्मा दे मत्थे दे लेख लिखदी है। ते जद भी सिमरन करिए, जद भी चंगा कम करिए, ते इनू अपनी उपलब्धि मन के ईगो विच ना आइए।
प्रभु की करुणा कही है भी प्रभु ने लिखिया सी हर दरगह जन पैनाइन जिन हर वसिया मन आए। कह लगे जिन्हां दे हिरदे विच परमात्मा दा नाम वस जांदा है, जिन्हां दे हिरदे विच परमात्मा दा नाम टिक जांदा है, वो हरि दे जन परमात्मा दे घर विच सन्माने जांदे ने, सन्माने जांदे ने। गुरु घर की एक परंपरा है, सिंह साहब जी जानते हैं, सारे गुरु के प्यारे जेड़े गुरु घर नाल जुड़े हो जानते हैं। इस स्थान पर कोई सेवा करे, किसी तरह की भी सेवा करे जिहदे विच परोपकार होए, समाज का भला होए, मानवता का भला होए, उन्होंने गुरु घर विचों सिरपाओ दिता जाता है। उन्होंने कहते पहनाना, सिरपाओ पहनाना। अगर गुरु घर की कोई सेवा करता है तो गुरु घरों वजीर उन्होंने सन्मान दिंदा है। तो तुहाडा की ख्याल है जेडे परमात्मा का सिमरन करते होणगे उन्होंने प्रभु के घर सन्मान नहीं मिलता होएगा। बाबा अमरदास साहब जी ने कहा सी, कह लगे साडे शरीर छड्डण तो बाद रोयो ना। तो सिखा ने पूछा महाराज क्यों, तुसी साडे गुरदेव अखां तो ओझल होवोगे तो असीं रोईए ना। सतगुरु कह लगे तुहाडे मित्र दे गल विच किसी सभा सोसाइटी विच सरोपे पैंदे हुण तुसी रोंदे हो। कह लगे नहीं, साडे मित्र दा सन्मान होए तो असीं रोवांगे। कह लगे हुण साडे गल अंदर प्रभु दी दरगाह विच सरोपे पैने ने। तुसी विचार देखो पुत भाई, हर सतगुरु पहनावे। ए पुत्तो ए भाइयों विचार करके देख लो तुसी कि गुरु अमरदास साहब नूं रब दे दरगाह विच सरोपे पैने ने ते साडे गल विच सरोपे पैण दे तुसी रोवो। ये गल फबदी है। गुरु ग्रंथ साहब आखदे रब दा बंदा शरीर छड्ड दे ते रोयो ना, ये ओदी तुहीन है। संत मुए क्या रोईए जो अपने गिरे जाए। संत नूं रोना नहीं चाहिए, वो तो उत्थे सत्कारिया जाता है। तो अज हजूर फरमाते ने हर दरगे पैनाइए जिन हर मन वसिया आए, जन नानक ते मुख उजले। हे नानक उन्हां दे मुख लोक परलोक बई उज्जल हुंदे ने। जन नानक ते मुख उजले, हर सुनिया मन भाए। जिन हर सुनिया मन भाए, जिन्हां ने वाहिगुरु जी नूं मन दे प्यार नाल सुनिया उन्हां दे लोक परलोक विच मुख उज्जल हुंदे ने। महला चौथा धन गुरु रामदास फरमाउंदे ने, हर हर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए। हरि दा नाम असल खजाना जी, असल खजाना। सब खजाने रह जाने ने, सब खजाने छुट जाने ने। कदी किसी खजानिया के मालिक नूं खजाने नाल खड़दियां देखिया, जिन्हां हत्थां पैरां नाल सब कुछ इकट्ठा किया हुंदा है ना, जिस दिमाग नाल सोच सोच के व्यापार आदि करके सब कुछ इकट्ठा किया हुंदा है, वो भी इत्थे रह जाता है। कदी किसी का दिमाग नाल गया, अखां नाल गईयां, हथ पैर नाल गए, जब ये नहीं गए तो इन्हां द्वारा जो मिलिया हो जाएगा। असल खजाना परमात्मा का नाम है। जिन तुर मस्तक लिखिया न सतगुर मिले आया है। जिन्हां दे मस्तक विच परमात्मा ने लेख लिख दिते उन्होंने गुरु आके मिलता है। जरी तवज्जो बख्शियो, तुहाडा की ख्याल है कि सज्जन ठग ने बाबे नानक नूं चिट्ठी लिखी सी, बाबा जी आओ, वो तो जान के बावजूद भी गलत सोच रहा है, सोच रहा ना, ये आसामी तगड़ी लगती है। इन्हों का मस्तक दसदा कि अमीर लोग ने। कौडे राक्ष ने चिट्ठी लिखी सी, बाबर ने चिट्ठी लिखी सी, कह लगे तिना मिलिया गुरु आए जिनको लिखिया। कईयां नूं गुरु आके मिलता है,
जिन्हां दे मस्तक दे भाग लिखे हुंदे ने। ते गुरु दिंदा की है? बाबा नानक साहब ने सज्जन नूं खजाना दिता सी, दौलत दिती सी ना, जीवन जुगत बख्शी, जीवन ढंग बख्शिया कि यह जिंदगी मिली है सज्जना, दोबारा नहीं मिलनी। इस जिंदगी नूं दागी करके ना जा। कह लगा बाबा दागी हो गया, डिग गया जीवन तो। मेरे वर्गा इंसान भी पवित्र हो सकता है? ते बाबा जी ने एक उदाहरण दी सी। सतगुरु कह लगे सज्जना, करोड़ा मन लकड़ा इकट्ठियां करने में देर लग सकती है, पर करोड़ा मन लकड़ साड़ने में कोई देर नहीं लगती। फिर की हो गया? एक चवाती तेनू साफ करके रख देगी, पवित्र करके रख देगी। एक शब्द ने पवित्र कर दिता। ते सतगुरु फरमाउंदे ने, तिन मिलिया मेरा सतगुरु जिन तुर मस्तक लेखिया, हर पौड़ी हो वारिया तिनको सदा सदा। मैं उन्हां तो सदा ही कुर्बान हाँ, सदा ही कुर्बान हाँ। जिन सतगुर मेरा प्यारा देखिया, जिन्हां ने मेरे प्यारे सतगुरु नूं देखिया। देखो गुरु जी सब तो प्यारा गुरु नूं आखदे ने, गुरु नूं आखदे ने। सब साडा सब तो ज़्यादा प्यार गुरु जी नाल है। मैं तो कई बार बेनती की, जिन्ना पुत नूं प्यार करते हाँ, कारोबार नूं प्यार करते हाँ, कभी गुरु नूं प्यार इन्ना कीता? मैं कई बार बेनती करता उन्हें दुकान वास्ते, परिवार वास्ते, कई बार बंगला साहब छड्डिया होएगा, पर बंगला साहब के वास्ते दुकान छड्डी होए बहुत घट होएगा, बहुत घट होएगा। पर गुरु सब तो ज़्यादा प्यार परमात्मा नूं करदा है, गुरु नूं करदा है। कह लगे मैं उन्हां तो कुर्बान हाँ जिन्हां ने मेरा सतगुरु देखिया, जिन्हां ने मेरे गुरु दे दीदार कीते। तिनको मिलिया मेरा सतगुरु जिन तुर मस्तक लेख लेखिया। तुर दरगाह तो जिन्हां दे मस्तक परमात्मा ने मस्तक विच लेख लिख दिते, उही मेरे गुरु नूं आके मिलदे ने। मैनू खिमा करियो, कई आके भी नहीं मिलते तो कई दूरों रह के भी मिल जाते हैं। गुरमत अंदर एक बचन है, गुरसभा एव ना पाइए, ना नेड़े ना दूर। गुरसभा एव ना पाइए, ना नेड़े ना दूर। ते पुछिए गुरु दी सभा मिलती किवें आ? नानक सतगुर तां मिले जहाँ मन रहे हजूर। यदा अर्थ यह नहीं है कि गुरु चरणों च आना नहीं है, क्या रखे हो? ज्ञान इथों आके मिलना है, जीवन जुगत इथों आके मिलनी है। बच्चा आखे जी स्कूल जाने की लोड़ है, टीचर को बैठने की की लोड़ है, मेरा मन तो वो है ही है ना। नहीं नहीं, ये कोताही होगी। आके बैठना है, पर केवल शरीर ना बैठे, गुरु सिद्धांत नाल, गुरु फिलोसफी नाल मन ओत पोत हो जाए। यह है गुरु दे कोल मन बैठना। हर गम ते आया गुरमती, तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया। हरि अगम है, पहुंच तो परे है, रब तक पहुंच नहीं हो सकती। पर हैरानी की गल है, जिन्हें बात को बहु अंधेसरो ते मिटे सब गया। सहज सोन और सुखमन नारी ऊंद कमल बिकसाया, देखो अचरज भया। जे ठाकुर को सुनत अगाध बोध, सोर दे गुर दया। जिस रब नूं मैं सब सुनदा सी, बड़ा परे तो परे आ, समझ तो परे आ, जब गुरु ने कृपा कर दी तली ते रख दिता भी आ ले कर ला दर्शन, आ ले। हजूर आखदे ने हर अगम ते आया गुरमती, तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया। प्रभु दा चक्कर चेन रूप रेख कोई नहीं, वो अपने आप तो प्रकाश है। गुर बचन ते आया जिन्ना गम, ते ठाकुर सेवक रल एकिया। जिन्हां ने गुरु दे बचन दे राही परमात्मा नूं ध्याया, वो सेवक ठाकुर नाल रब नाल मिलके एक मिक हो गए। सब कहो मुखो, सब कहो मुखो, की कहना?
वाहेगुरु वाहेगुरु। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਕਹੋ ਮੁਖੋ ਨਰ ਨਰ ਹਰੇ, ਨਰ ਨਰ ਹਰੇ, ਨਰ ਨਰ ਹਰੇ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, हे ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਰ ਲਾਹਾ ਭਗਤ ਵਸੇਖਿਆ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਹੇ ਖੱਟਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ, ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। This program is sponsored by A name you can rely upon, Simco. कॉन्फिडेंस है दुनिया सामने हर रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਿਮਕੋ। Simco Supreme Hair Fixer, Simco Classic Hair Fixer. ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ a name you can rely upon, Simco। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 28,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਾਕ ਟੂ ਸੇਵ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 28,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਈਏ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਹੁਣੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਿਮਕੋ। Simco Supreme Hair Fixer, Simco Classic Hair Fixer. ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ a name you can rely upon, Simco। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਕੁਇਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ। ਵੇਖੋ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਅਤੇ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਰਿਪੀਟ। ਸਪਾਂਸਰਡ ਬਾय Simco Hair Fixer। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਿਮਕੋ। Simco Supreme Hair Fixer, Simco Classic Hair Fixer. ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ a name you can rely upon, Simco। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ CFC ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ CFC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ CFC ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ +2 ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ 2018 ਜਾਂ 19 ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। खा ले बेटा, अच्छी लगी? बेकार। हाँ? अंकल ये क्या है? आलू पराठा। अरे इसमें तो बटर ही नहीं है। डाला है जी। मैं मम्मी वाली बात नहीं है। मैम वही पीले वाला असली बटर जैसा।
हर पीली चीज बटर नहीं होती है। अटर पटर सब्स्टिट्यूट डाल दिया और बटर कहते हो? असली बटर में दूध मलाई होती है और अटर पटर में अटर पटर होता है अंकल। जिसमें दूध मलाई नहीं वो बटर नहीं। अमूल बटर, असली बटर। आप भी पूछिए, अटर पटर है कि असली अमूल बटर है? कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे, नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पावे। संसार च तू तनाड़ रहना है। संसारिक पदार्थां तो तेरे को घाटा नहीं होवे, कोई कमी ना होवे, पर तू हृदय च गरीब होवे। सत श्री अकाल डार जी। डार जी, ये बॉबी टोरंटो तो होने ही आया है। गुरमीत आज सवेरे ही अमेरिका तो आई हूँ। मैं सन्नी मुंबई तो आया। मैं जैज फ्रॉम बर्मिंघम। एक चिड़ी देना है। कमाल है यार, जिन्हों देखो बाहरों आया, ये भी बाहरों आया हूँ। डार जी ये बाहर दा दूध नहीं है, अपने पंजाब दे पिंडा दा दूध है, अमूल दूध। हर सवेरे पंजाब दे डेयरी फार्मर फ्रेश दूध अमूल ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮੂਲ ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। अपने पंजाब दा अपना अमूल। अमूल दूध पीता है इंडिया। Viewers of Chardi Kala Time TV of every age and all religions in India and abroad to know more about Gurbani, Sikh history and global Sikh personalities. Watch Aao Baniye Gursikh Pyara quiz show every Sunday 10:30 AM. Repeat same night 1 AM. Sponsored by Simco Hair Fixer. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 28,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਾਕ ਟੂ ਸੇਵ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 28,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਈਏ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਹੁਣੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। के हंस बोले भगवान सुनो राजा होए सन मुखा, तेरे पाव न देसे मेरे नाही अपना दुखा। मनु की लोड़ पई है कि थोड़े महलों दे विच आवां, मैं थोड़े कोलों कुछ लेना, तुसीं साडे कोल राजपाट है, थोड़े कोल हुक्म है, थोड़े कोल ताकत है, इहदी मुबारक थानू है। जे कोई कहे ना कोई गरीब बंदा कि मेरे घर को पुलिस कमिश्नर आ जाए, मेरे घर कोई MLA आ जाए, फलान जाए, कहना मैं की लेना इन्हां कोलों, मेरे को मंग ही नहीं आएगी। मनु परमात्मा ने खुदा दी बंदगी दी है कि मैं तो उत्ते खुश हैगा। खा ले बेटा, अच्छी लगी? बेकार। हाँ? अंकल ये क्या है? आलू पराठा। अरे इसमें तो बटर ही नहीं है। डाला है जी। मैं मम्मी वाली बात नहीं है। मैम वही पीले वाला असली बटर जैसा। हर पीली चीज बटर नहीं होती है। अटर पटर सब्स्टिट्यूट डाल दिया और बटर कहते हो? असली बटर में दूध मलाई होती है और अटर पटर में अटर पटर होता है अंकल। जिसमें दूध मलाई नहीं वो बटर नहीं। अमूल बटर, असली बटर। आप भी पूछिए, अटर पटर है कि असली अमूल बटर है? रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी भाइयों बहनों एवं माताओं व बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति का ये विशेष त्यौहार राष्ट्र, संस्कृति, मातृभूमि एवं मातृशक्ति की रक्षा के संकल्प की याद दिलाता है। आज के दिन हर नागरिक इनकी सुरक्षा का संकल्प ले, तभी इस दिन की सार्थकता होगी। मैं मातृभूमि की रक्षा में लगे हुए देश के सजग और वीर सपूतों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। पहला दिन है, एंजॉय करिए। हम ओए छोटा पैकेट इधर आ। ना की है नित्या तू हड्डा ना की है, वड्डा पैकेट। जो अंदर दी ताकत तुसी ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕੋਲਗੇਟ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਥ। ਹੁਣ ਅਮੀਨੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ। ਕੋਲਗੇਟ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਥ।
दुश्मन को सबसे पहले हमने पहचाना। चीन ने लैब में वायरस बनाया। चीन घातक है, अब पूरी दुनिया ने माना। यूएन को चीन ठेंगे पर रखता है। इनका धोखा लगातार दिखाते रहे। जब तक चीन को तोड़ेंगे नहीं, ये अभियान छोड़ेंगे नहीं। हम खुलकर बोलते हैं, देश की आंखें खोलते हैं। इसलिए अब तो सब देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। जसप्रीत दी फ्लैक्सीबिलिटी करे घर दे कोने साफ ते कोलगेट सुपर फ्लैक्सी करे छुपे कीटाणुओं नु साफ। फ्लैक्सीबिलिटी होवे तां ऐसी कोलगेट सुपर फ्लैक्सी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाएं तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए। नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। गुड मॉर्निंग टीचर। सुनो बच्चों, मुंह है कीटाणुआदा एंट्री पॉइंट ते कोलगेट वेट शक्ति कीटाणुआदा मुंह विच सफाया करे ते अंदर जान तो रोके। कोलगेट वेट शक्ति, मुंह साफ तां तुसी हेल्दी। सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम खबर ते नज़र रजिंदर वालिया शो दे विच तुहाडा स्वागत। प्यारे दर्शकों, अज रखड़ी दा त्योहार है। भैन अते भरा दे प्यार नूं दर्शाउंदा ये त्योहार। इस दिन देखो इंडिया दे विच साडे सभ्याचार दे विच इस किस्म दे जिहड़े त्योहार लगातार सारा साल चलदे ने। ते रखड़ी का त्यौहार विशेष इस करके है कि ये ऐसा दिन है जिस दिन भैनां अपने मां जाया दे गुटां ते रखड़ी बन्नदियां ने ते उन्हां तो अगले वरे लईए आस करदियां ने कि ओह उन्हां लई जिहड़ा है रक्षा बंधन उन्हां दी रखिया करनगे। इस किस्म की गल बहुत बार ऐसा हुंदा है कि ये समाज है इहदे विच कई गल्लां करके खटास भी आ जाती है रिश्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਉਹ ਖਟਾਸ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਟਾਸ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ। 3 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਮੇਲਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪਾਤਾ। ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੈਨ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਮਠਿਆਈਆਂ ਕਾਰਨ 5000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਐਨੀਵੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗੀਏ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 112 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ यूपी ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਚੱਲ ਵਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ 700 ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਫਰ ਹੋਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈਪਟਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸਤੇ ਲੈਪਟਾਪ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ ਬੀਬੀ ਰਮੀਜ਼ ਹਕੀਮਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਪਤੀ, 43 ਸਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਤਿੰਨੇ ਡੁੱਬੇ। ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਡੁੱਬੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਯੋਧਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਨ ਨਗਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਯੋਧਿਆ ਸਵਰਨ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸੀ, ਸਵਰਨ ਨਗਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਅਯੋਧਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਰਾਮ ਲਾਲ ਲਈ, ਸਭ ਲਈ, ਨਿਆਂ ਲਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ। ਦੁਖਾਂਤ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੱਲ 86 ਮੌਤਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ 112 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 115 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਦੋਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਗਿੱਦੜਵਾਹੇ ਤੋਂ MLA ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ KP ਰਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 2-2 ਲੱਖ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ ਉਸ ਲੀਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 25 ਲੱਖ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੁਛ ਹੈ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਥੋੜੀ ਹੋਣਗੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਐਨੀਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਬੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਗਏ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਮਾਝੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਮਾਝੇ 'ਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦਾ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ,
ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਘੜੂਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੱਢ ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲਦਾ, ਧੂਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, 10,000 ਲੀਟਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ, 7 ਲੋਕ ਫੜੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਮਹਾਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਵਾਓ ਅਫਸਰ, ਡੀਐਸਪੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਵਾਓ, ਐਸਐਚਓ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਵਾਓ। ਕਿਉਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਵਾਓ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਹਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਥੋੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 50,000 ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਗੇ, 5 ਲੱਖ ਆਪ ਵੀ ਕਮਾਉਣਗੇ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਕਰੋੜ ਜੇ ਐਸਪੀ ਲੱਗਣ ਦਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਤਲਬ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਲਾਗ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਬੜੇ ਡਾਇਲਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਲਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੀਚ ਘਟਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਕੱਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਕਹੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ, ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਐਸੀ ਜੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ, ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਓ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 2-4 ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ। ਜੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦਾਰੂ ਆਹੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਡੇ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਮਸਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀ ਲੈਣੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਾ ਪੀਣ। ਪੌਚ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਟੇਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 50, 25, 30, 40 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪੌਚ, 1 ਪੈਗ 2 ਪੈਗ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ, ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜੇ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਫੜੋ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਮਰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ। ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी भाइयों बहनों एवं माताओं व बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति का ये विशेष त्यौहार राष्ट्र, संस्कृति, मातृभूमि एवं मातृशक्ति की रक्षा के संकल्प की याद दिलाता है। आज के दिन हर नागरिक इनकी सुरक्षा का संकल्प ले, तभी इस दिन की सार्थकता होगी। मैं मातृभूमि की रक्षा में लगे हुए देश के सजग और वीर सपूतों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाएं तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। लॉकडाउन कल्ले बिता के समझी कि कल्लेपण विच कदों तो जा रही सी। एक पासे लोग की कहण के तां डर सी, दूजे पासे फिर तो जिउण दी उम्मीद। इसे करके